Hello everyone, welcome to our class of differentiation. So yesterday we provided the lecture of introduction and where I told you that I will start from differentiation, the part of calculus. Okay, it is a major part of calculus. So we have to start from differentiation. We are going to start from differentiation. Okay? This is exam time in hand and I am just writing first of all this formula of differentiation. Okay, so we are going to write the formula of differentiation. So from now we are going to start differentiation. Okay, part of continuity and differentiability. Okay, continuity and differentiability. Continuity and differentiability. So we have to start from differentiation. You know that continuous function is not more important in board examination as differentiation are. Okay, so we will start from differentiation. After that, after completing the differentiation, we will start continuous. Okay, continuous is the topic of just one exercise. And the differentiation are going to make more exercises. That's I think 5 and 6 exercises of differentiation. So we are going to start from differentiation. Okay, and write the basic formula of differentiation which are more important for you. Okay, so d by dx of sin x is equal to cos x. Okay, d by dx of cos x is equal to minus sin x. d by dx of log x, that is 1 upon x. Okay, and d by dx of tan x, that is sec square x. Okay, and d by dx of sec x, that is sec x tan x. These are the basic formulas which I read. And d by dx of exponential function. Exponential function, d by dx of exponential function, that is a to the power x. And the most important formula of differentiation, that d by dx of x to the power n, that is x to the power n plus 1 upon n plus 1. Okay, and d by dx of ax, d by dx of ax, that is ax into log a. Okay, and d by dx of cot x, d by dx of cot x, that is minus cosec square x, and d by dx of cosec x, that is minus cosec x and cot x. Okay, minus cosec x and cot x. And we are going to start from this basic formula, and after that I will tell you that the formula of inverse function. Okay, that is also the most important part of differentiation. So just read it and carefully write it, the formula of differentiation. Okay, so I'm going to make most important 30 questions of differentiation based on these simple formula basis question. Okay, and one important thing, that is I will tell you that write two formula which I want to read here, which I want to write here. You have to note in your copy, in your notebook. These are most important questions, most important formula. So you have to write in your copy. d by dx of first function into second function, that is first d by dx of second
plus second d by dx of first. Okay, this formula we will use where the two functions are given. Okay, so you have to write down it. And the second important formula is d by dx of first function by second function. So we have to write second d by dx of first minus second minus first d by dx of second. Okay, upon second and we will use this formula whenever the functions are in division form. Okay, so you will write it. Okay, now we are going to solve the 30 important questions. We will cover up in 2 or 3 more classes. That's 30 important question. Okay, now I can use you bilingual language as well. As you know that most of the students are not confirming English language, so we will use the bilingual language in the questions. So पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या यूज करेंगे? पहला क्वेश्चन है गिवन y इक्वल टू log tan x. Okay, we have to differentiate y is equal to log tan x. Okay, now differentiation with respect to x. हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट पे? x के रिस्पेक्ट में. तो डिफ्रेंशिएट करते हैं dy by dx of log tan x and log tan x and d by dx of tan x. तो हमें पता है कि पावर अगर हम एक चेन रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं पावर फंक्शन एंड वेरिएबल. ठीक है, जैसे चेन रूल, इसका मतलब क्या होता है? पावर फंक्शन वेरिएबल. तो पहले हम लोग पावर का करेंगे. पावर यहाँ पे क्या है? पावर एक है. तो एक का कोई भी मेन फॉर्म होता नहीं, तो एक पावर को निगलेक्ट कर देंगे. ओके, फिर हम लोग फंक्शन का करेंगे. फंक्शन क्या है? log x. ठीक है, और फिर हम लोग किसका करेंगे? एंगल का. एंगल यानी कि वेरिएबल एंगल, ये पावर फंक्शन एंगल होता है. ठीक है, एंगल का tan x. ठीक है, सो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x में क्या है? tan x. ठीक है, 1/log x का क्या होता है? 1/tan x. और tan x का क्या होता है? sec square x. ठीक है, आंसर लिख दे sec square x upon tan x. ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा sec square x upon tan x. अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे. इसमें सॉल्व कर सकते हैं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग लिख सकते हैं 1/cos square x. sec square x को लिख सकते हैं 1/cos square x एंड sin tan x को क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x. ये cos x ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ से हटा के इसको कहाँ रख सकते हैं? ऊपर cos x. ओके, ये cos x कैंसिल आउट हो जाएगा. sin x बाय cos x, sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा? 1/sin x इंटू cos x. ओके, 1/sin x इंटू cos x. अब लोग क्या कर सकते हैं? हमें फॉर्मूला पता है sin 2 थीटा. sin 2 थीटा, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x एंड cos x. ओके, ये क्या फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा. थीटा इज इक्वल टू x में 2 sin x cos x. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो 2 अब हम क्या 2 sin x cos x, ये क्या हो जाएगा? sin 2x. ठीक है, sin 2x हमें क्या मिल जाएगा? sin 2x को हम ऊपर चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 cos x 2x. फाइनल रिजल्ट इज 2 cos x 2x. ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू log tan x इज इक्वल टू 2 cos x 2x. ओके, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो MCQs के वे से और जो शॉर्ट फॉर्मेट जैसे 4 नंबर के 5 नंबर के ऐसे उस नंबर के फॉर्मेट से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा सकता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे? y इज इक्वल टू
एक्स टू द पावर साइन एक्स। लोग एक चीज़ हमेशा याद रखें, क्या याद रखना, लॉग हम कब लगाते हैं, जब भी हमें एक्स के ऊपर कोई वेरिएबल दिख जाए, क्या लिख जाए, एक्स के ऊपर कोई वेरिएबल दिख जाए, ठीक है, जब भी हमें एक्स के ऊपर कोई वेरिएबल दिख जाए तब हम दोनों तरफ जैसे दोनों तरफ हम लोग क्या लगा लेंगे, लॉग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स, ओके। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन, अब हम इस साइन एक्स को आगे ला सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग बाई साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। लॉग के एंगल में जो भी वेरिएबल होता है क्या होता है, लॉग के एंगल में जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं एन लॉग एक्स, ओके, एन लॉग एक्स। तो हमने लिख लिया है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, किसके डिफ्रेंशिएट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग। और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सेकंड फंक्शन। यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड विद सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे ही लिख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज लॉग एक्स एंड प्लस लॉग एक्स हमने ऐसे लिख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स, ओके। अब देखो हम लोग क्या करें, सिंपल सी चीज़ है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या होता है, 1/1, और फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन भी करना है एंगल का। देखो हमारा पावर है नहीं, पावर का हमने किया ही नहीं, फंक्शन क्या था, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/1। अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन, एंगल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, एंड एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और क्या करेंगे, सिंपल 1/बाई डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। अब इस y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई में साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा आंसर होगा। हम चाहें, अगर हम चाहें तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, y की वैल्यू हम एक्स टू दी पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड विद साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा यूजुअल आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था क्योंकि ये लॉग के फंक्शन, लॉग अरेंजमेंट के फंक्शन पे बेस्ड था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं करने जा रहा हूँ, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम 8 मार्क्स का आ सकता है, जो क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, वाई अगर मैं लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, ठीक है। हमने क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन और डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, जब भी इसका डी बाई डी एक्स करना हो हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज एम डी बाई डी एक्स का फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, ऑन सेकंड फंक्शन का होगा स्क्वायर, ठीक है। ये इसमें लगेगा, ठीक है। क्या चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। इधर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाय, ओके। क्या करेंगे, लॉग वाई तो हम ऐसे रख देते हैं,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का ऐसे रख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है लॉग बाई होल ऑफ स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे लॉग बाई लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x माइनस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बाई 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बाई 1 डी बाई बाई डी एक्स भी होगा, क्यों होगा क्योंकि वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स लॉग बाई का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। सो इतना आप नोट कर लीजिए, मैं ऊपर लिखता हूँ इस क्वेश्चन, ठीक है। लॉग 1/x माइनस लॉग एक्स 1/y एम डी बाई डी एक्स अपॉन लॉग बाई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं मतलब हमने पहले एक्सपेरिमेंट में सॉल्व किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ से था, ठीक है। यहाँ पे लॉग एक्स यहाँ पे लॉग वाई होगा सर, यहाँ पे क्या था एक मिनट वेट है ना, लॉग एक्स था लॉग ओके 1/x लॉग वाई था, क्या था लॉग वाई, ठीक है। क्या करेंगे इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे हम लेकर जा सकते हैं, ठीक है। लॉग बाई अपॉन 1/x बाय लॉग बाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू 1/y डी बाई डी एक्स विथ अपॉन लॉग बाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर से एक लॉग बाई चला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 1/x इंटू लॉग बाई, इस x को हमने सिंपल नीचे भेज दिया, इसको सॉल्व करने में नहीं मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात करो, हमें इधर हमारे इक्वल टू में क्या था डी वाई बाई डी एक्स, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमको क्या निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ओके। नाउ लॉग एक्स इस वाई को नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा बाई लॉग बाई का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब हम लोग क्या करें डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे देखो इस वाले फंक्शन को इधर ऐड करेंगे, ठीक है, सिंपल ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स अपने वाई लॉग का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x लॉग, ओके। हमें ये लिखना है, ठीक है। हमें क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमें ले लिया, क्या मिल गया 1 + log x अपॉन वाई लॉग वाई का होल ऑफ स्क्वायर, इधर क्या है 1/x लॉग वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें हमारा डी वाई बाई डी एक्स करना है, क्या है इसको पूरे को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1/x लॉग वाई मल्टीप्लाई 1 + log x अपॉन वाई लॉग वाई का होल ऑफ स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, और अगर आप न चाहें एक काम आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या है 1/log बाई इंटू एक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ पे 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड है जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई लॉग वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सर ये यहाँ पे वाई भूल गया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है इस
ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ठीक है, 1 log y का होल स्क्वायर x log y एंड y log y का होल स्क्वायर प्लस log x, ठीक, ये वाली चीज़ ऊपर भेज दी, ठीक है। आज क्या करेंगे, देखो इस एक स्क्वायर से एक log y हमारे कैंसिल होता है, ठीक है। क्या बचा हमारा y इंटू log y अपॉन x मल्टीप्लाई y log y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस log x, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो इसके आगे हम बेसिकली नहीं सॉल्व कर सकते। सो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन, आंसर 4.2 मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जो पेपर और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं वो क्वेश्चन करा रहा था जो सिंपल फॉर्मूले के बेस्ड है, मैं वही देख रहा हूँ जो सिंपल फॉर्मूले के बेस्ड है। आइए एक्सपोनेंशियल के बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन क्या है, y इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। इस क्वेश्चन को भी हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को भी हम उसी रूल से बनाएंगे, ठीक है। कौन से रूल से, डिवाइडेशन वाले रूल से। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाई सॉरी dy बाई डी एक्स प्लस बाई क्या e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, राइट, माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, अब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स एंड इसमें देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर माइनस ए टू द पावर, इस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस में, माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x एंड प्लस e टू द पावर x का माइनस x का डिफरेंशिएशन टू द पावर माइनस x एंड माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का, ठीक है। नाउ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ओके, e टू द पावर x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है। ये चीज़ बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, माइनस ठीक e टू द पावर माइनस x एंड माइनस e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाई विद e टू द पावर x प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस x, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे अपॉन क्या है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का, ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूँ इसमें
ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स का बन जाएगा ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली, सो ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन रख लिया। सो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जब ये इसके अपॉन में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि क्या है, ए टू दी पावर एक्स आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। अगर ये लंबी लेवल क्वेश्चन आ सकता है तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो हम होल स्क्वायर में बनाएंगे, इसमें होल स्क्वायर में बस कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 माइनस ए टू दी पावर एक्स का स्क्वायर ए टू दी पावर 2x माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस 2x एंड माइनस 2a ए टू दी पावर x एंड b दैट इज ए टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये अपना मल्टीप्लाई है, नीचे में क्या है ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, क्या बन जाएगा 1। ठीक है, और ये ए टू दी पावर 2x प्लस ए टू दी पावर माइनस 2x और माइनस 2 इंटू ए टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स 0 बन गया। ए की पावर 0 कभी भी होती है वो क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1 और एक्स ए टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ए टू कभी भी किसी भी पावर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की पावर जो होती है 0 तो फंक्शन 1 हो जाता है। नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है जिसकी पावर 0 है तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्या करेंगे 1 माइनस ए टू दी पावर 2x प्लस ए टू दी पावर माइनस 2x माइनस 2। ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स। जिनमें मुझे लग रहा है चार्ट पे मैंने गलती की नहीं थी। ठीक है, स्क्वायर अगर मैं इसका भी स्क्वायर खोल दूँ, ठीक है, एक बार चलिए वहाँ पे हमने 1 ले लिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहिए तो हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं। ठीक है, होगा ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 2x प्लस ए टू दी पावर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स और होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, लेंदी क्वेश्चन है भाई, लेंदी क्वेश्चन है, अच्छे से करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका होल ऑफ स्क्वायर में ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a यानी ए टू द पावर एक्स एंड बी यानी ए टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ओके, एंड यहाँ क्या है माइनस ए टू द पावर 2x प्लस ए टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 और अपॉन में क्या है ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स और अब सिंपल आप यहाँ पे 1 बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे ए टू द पावर 2x प्लस ए टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, और प्लस 2 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या माइनस ए टू द पावर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ए टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या करें, ये ए टू द पावर माइनस 2x, ये ए टू द पावर प्लस का 2x कैंसिल आउट, ये ए टू द पावर माइनस का 2x, ये ए टू द पावर माइनस का 2x, ये ए टू द पावर 2x
एक्स और ये माइनस का था कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 + 2 क्या बन जाएगा, 2 + 2 हमारा 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4। ओके, नीचे क्या हो गया e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड नोट कर लेना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसको रफ आउट कर सकता हूँ यार, टॉपिक वही चल रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा बनाऊँगा खुद देखना, ये भी एक छोटा क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, ये MCQs में आ सकता है। ठीक है, क्या है x टू द पावर x। मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला कि जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर लगे वहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x। ठीक है, नाउ log 1 मैंने भी बताया था, लॉग के एंगल की पावर में x हो या कुछ भी हो तो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 1 dy बाई डी एक्स। इधर क्या है, x log y का log x का डायरेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, 1/x। ओके, एंड x का डिफ्रेंशिएशन प्लस log x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो। ठीक है, तो आ जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर 1 प्लस log x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स। ठीक है, इधर का y होकर के इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर x, x टू द पावर x लिख दिया, 1 प्लस log x। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ